পাচ্ছেন? হ্যালো? Can you hear me? हॅलो आवाज येतोय काय? येतोय आवाज येतोय. হ্যাঁ, গলা কেটে কেটে আর বলছে এখানে টাওয়ার প্রবলেম হচ্ছে। मेसेज मध्ये टाईप कर भाऊ, चॅट म्हणून असतं बघ. हेलो हाँ सुनाई दे रहा है अभी। तो आपसे One of the issues that I wanted to talk to you about. আমি আপনাকে না হোয়াটসঅ্যাপে একটা ভিডিও কল করি। হ্যাঁ, আচ্ছা ভিডিও কেন নেই আমারটা তো ভিডিও আছে এই যে দেখবে এই যে তো এটা ভিডিও কথা হচ্ছে। হ্যাঁ যাই হোক বলো। এটা আপনি এখানে কাজ করেন? হ্যাঁ এটা আমি কাজ করি লাইট ফাইট জ্বালিয়ে দিয়েছি। আমি চাইছিলাম যে আমার কিছু জিনিস যদি ওই পটচিত্র হোক বা মিউজিয়াম হোক ইউটিউবে যদি ছাড়া যায়, ওই জন্যই তো মেশিনটা কিনে নিলাম। আসলে শুট করে কিভাবে ছাড়তে হয় সেগুলোই তো জানি না। পটচিত্রটা হচ্ছে পুরো পৃথিবী জুড়েই পটচিত্র ছিল। এখন আমাদের বাংলায় হয়তো পটচিত্র বলছে, উড়িষ্যার পটচিত্র বলছে, বিহারে মধুবনী বলছে, মহারাষ্ট্রে ওয়ার্লি পেন্টিং বলছে, রাজস্থানে মিনিয়েচার পেন্টিং বলছে, মধ্যপ্রদেশে গোন পেন্টিং বলছে। মানে যে যার ভাষা আলাদা বলে আলাদা আলাদা করে নামকরণ হয়। কিন্তু আমার মনে হয় যে সব একই ছিল। কালচারের জন্য, পূজা পার্বণের জন্য যে যার আলাদা আলাদা পূজা করে, যে যার অমুক করে সেটা তুমুক করে, তো সেই জন্য ঘরানাগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবার हेलो सुनते पाচ্ছেন मैं दीदी? ये जो कला जो है, ये जो आर्ट है, ये आर्ट ये आजकल की नहीं है। इनको कम से कम 300-350 साल तो हो गया, 700 साल पहले भी है। हम लोग आदिवासी है और वो जंगल में रहते थे और जंगल में रह के चित्रकती, वो कत्ते के ऊपर का पेंटिंग, पपेट्स, लेज़र पपेट्स, तो 3 कलर लेता है और वो पेंटिंग पे पूरा स्टोरी बनाता है। कैसे बनाता है? उनका दिमाग में लिखा नहीं, पढ़ा नहीं, कुछ भी नहीं। वो सब आर्ट कॉलेज यहाँ पढ़ाई करने के लिए आता है, पीएचडी करने के लिए आता है। हमारे पास जो पुराना कलेक्शन है वो सिर्फ पेपर पे है, लेकिन उससे भी पहले वो बड़े बड़े पत्तों के ऊपर बनता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको पेपर दिया और वो चित्र हमारे पास अभी पेपर के ऊपर बनी हुई है सारी। तो ये आर्ट जो है ना, ये बेसिकली ये बना के सेल वगैरह करना ये अभी अभी का हो गया, लेकिन उससे पहले ये सिर्फ ये परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म थी। ये सिर्फ मंदिरों में इसके परफॉर्मेंस किए जाते थे। कुदरत ने इतने पूछो मत किस अंदाज से, किस नीकी से कश्मीर बनाया। यहाँ का ये जो कल्चर है, जैसे फूल है यहाँ का और यहाँ की चिड़िया वो बनाते हैं, जो यहाँ कश्मीर में है वही बॉक्सों पे बनाते हैं। इससे पता चलता है कश्मीर की पहचान क्या है। आर्टिस्ट का मकसद यही है, अपने स्टेट को पहचान दो। यही मेरे फैमिली में पहले काम नहीं हुआ है कैनवास में, नहीं ये इसमें एक्चुअली क्या होता था पहले हमारे पारंपरिक से चलते आ रहा था, मैंने दीवार में काम करने का सुंदरता के लिए, अच्छा दिखने के लिए वो मैंने पेंटिंग बनाते थे। लेकिन इतना बारीक, इतना ये सब चीज नहीं बनाते थे। न किसी ने इतना नहीं पूछा कि मतलब ये शेर बना दिए मतलब बना दिए, हिरण बना दिए मतलब बना दिए, इस तरह से कुछ चीजें हैं। This is sometimes a lot of this practice is a practice rather than thinking over why and all of that. It's something which is done generationally. But that is one of the issues that I wanted to talk to you about, because in any kind of dialogue, especially people from two different places, okay, there is a self and the other. But the awareness of the self, we need the other. It is in that process we can articulate. When I came here, people were always asking me thousands of questions. And I had the same kind of questions to them, like here, you ask the Quebecois people to talk to us about their culture, they can't. But that's what the issue is. It's not that they don't know. If it is your life experience is expressed through your actions, not necessarily verbally communicating. When you verbally communicate,
whose language he is going to talk. You speak English, although you are speaking Bangla, কিন্তু ওর বাংলা তো বলছো না। এখন আমরা চালটাকে ভাজছি, খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে একদম কালো করে। কালোটা আমরা চাল পুড়িয়ে দিয়েছি একটু পেস্ট করে। মালার মধ্যে একই রকম পদ্ধতি আমাদের নারকেল মালার মধ্যে রাখতে হয়, সামান্য একটু জল দিতে হয়। প্রত্যেকটা রঙের সঙ্গে আমরা বেলের আঠা মিক্সড করি। वेजिटेबल कलर से बनता था लेकिन वो कलर रुक नहीं पाता है, फैल जाता है वो कलर। तो अभी हमने एक्रिलिक कलर बनाते हैं, कैनवास के ऊपर बनाते हैं हम लोग। अभी हम ऑर्डर बेसिस पे बड़ा वगैरह बनाते हैं, छोटा भी बनाते हैं, बट हमारी जो एक्चुअल मेन साइज ओल्ड पेंटिंग्स की जो साइज है ना, ये 12x18 और 12x15 इंच। लेकिन अभी इंक्वायरीज आती है कैनवास पे बनाओ, कोई बोलता है वुड पे बनाओ, कोई बोलता है वॉल पे बनाओ, तो वैसे हम बनाते काम करते। अब गांव वाले दीवार में बना रहे हैं तो उसके पास ब्रश नहीं है, उसके पास कलर नहीं है, उसके पास मिट्टी होता है, उसके पास गोबर होता है, उसके पास कहना चाहिए फूल पत्तों का कलर होता है। और शहर वाले पास ब्रश होता है, कलर होता है, पेपर होता है। हम लोग हाथ से जब पेंटिंग करते हैं तो एक मतलब हाथ गंदा होता है, कुछ होता है, फिर ब्रश से करते हैं तो हम इतना सा दूर हो जाते हैं उससे। अभी कंप्यूटर से कर रहे हैं तो अब इतना सा दूर जा रहे हैं, जो चीज बना रहे हैं। So technology is not neutral. So we have to speak about the nature of the culture of technology. Of course, I'm saying it is the extension of modern Western culture, which has its own worldview. And in this context, as we are talking about digital or new technology meeting or going to interact with the art traditions in India, it is an intercultural, fundamentally intercultural issue. मतलब जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं और जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं, so there's an ever widening gap between these. और ये जो पैंडेमिक है, मतलब ये फोर्स्ड माइग्रेशन हो गया है। पैंडेमिक में मैंने फ्रॉम जून मैंने सब ये ऑनलाइन वर्कशॉप जूम पे, गूगल मीट पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, ऐसे बहुत मैंने क्लासेस वगैरह लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कुछ टाइप्स हुए थे। পুরো পৃথিবী জুড়ে কোনো দেশ থেকে কোনো লোক আর আসতে চাইছে না, তারা বাড়িতে বসেই অনলাইনে দেখেই তো তারা এসব জিনিসপত্র কেনাকাটা করছে। পৃথিবীর চাকাটা নেলে ঘোড়া বন্ধ হয়ে যাবে, ऑनलाइन ছিল বলে পৃথিবীর চাকাটা ঘুরবে। जिसने मोबाइल बनाया ये हमारे लिए सहूलियत है। अगर कोई बंदा इसको नाजायज फायदा उठाएंगे, वो उसको बदकिस्मती है। टेक्नोलॉजी नया अच्छा आ गया, जैसे मोबाइल, हम सब दोनों बात कर रहे हैं। अगर ये पुराने जमाने में छोड़िए, ये मौजूद था, ये चमत्कार हो गया है ना। सब लोग इतने जल्दी ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किए, इसीलिए प्रोजेक्ट हो पाया है ऑन वन हैंड। बट ये जो एवर वाइडनिंग गैप है, but this is catch-22. It's like you need to do that for the survival of community of people, but at the same time bring them into the fold of this economic system that we have. By doing that, in that process, the cultural erosion, social erosion, environmental erosions, all of those things happen. यह है कि एक क्रिएटिव टेक्नोलॉजिस्ट का मतलब हाउ इज टेक्नोलॉजी क्राफ्ट। बहुत अच्छा सवाल है। तकनीक जो है वो अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि तकनीक अपने आप में एक इतना बड़ा क्राफ्ट है जो कि जिंदा है। मैं बड़ा प्यार करता हूँ टेक्नोलॉजी से, कि ऐसी चीज जो हम शायद इमेजिन करते हैं सपनों में कभी कि वो हो सकती है, लेकिन तकनीक उसको सच्चाई में बना सकती है। तो वो जो फर्क है कि एक जादूगर का होना और एक कलाकार का होना और एक टेक्नोलॉजिस्ट का होना, एक तकनीक एक्सपर्ट का होना, वो तीनों जब मिलते हैं तो एक क्रिएटिव टेक्नोलॉजिस्ट बनता है। ये जो नया जो तकनीक है, ये कुछ लोगों के हाथ में ही रह जाता है, और क्या होता है कि उसका कंट्रोल उनके हाथ में रहता है। We have technologies which can predict what will make you happy if you see this, what will be more interesting for you. You are already looking at the possibility, the capability of AI algorithms to addict people. If I go out of the door
I will probably see like 3 people just outside the gate stuck glued to their phone. So it is a power relationship of that colonial domination, relationship of domination that is inherent in this technological culture facing the traditional art culture that we have. If I can comment on that, your intention is to engage into the dialogue between the two is always in the framework of what technology can bring to them and bring them into the technological world for their survival. And if I look at it from the intercultural point of view, it is another way of embarking on a total extinction, because inclusion means into the colonial system, and that's not what we want to do. You want to have mutual learning kind of that you are proposing. So I think that it's a very important proposition, but how you do it, that's the challenge. So Kalighar is firstly that place of dialogue between technology and craft through this act of working, creating stories together. It has been developed from this lab to incubate projects that operate at the intersection of art, technology and culture. हमको एक दूसरे से सीखना है, एक साथ काम करके। तो आपको क्या लगता है कि हमारी ये आर्ट फील्ड को पकड़ के क्या हम सीन बना के आपको सेंड करें, वैसे भी बताइए। ये घर का जो हम लोग घर के बारे में बात कर रहे थे जी, उसका आपके लिए क्या महत्व, क्या है, मायने क्या है? जैसे कि आपके दिमाग में अगर एक ऐसा आर्टवर्क, तो वो आप क्या बनाएंगे? अगर आप घर का पूरा डिटेल या कुछ दिखाने का कुछ जरूरत नहीं है, पर उसमें जो फीलिंग क्या है, घर से आना या घर से जाना या घर का खाना या जो भी चीज आपके लिए बेस्ट है, आपके घर के लिए और आपके लिए। घर में आना मुझे अच्छा लगता है, घर में खाना अच्छा लगता है मुझे। अगर आपको वैसा कुछ ट्राई करना है वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको स्केच करके और आपको मैं एक चीजें मैं घर का जो है वो चीज मैं दर्शा देता हूँ और उसके बाद आप उसमें जोड़ते जाइएगा, जो मोमेंट बनाना चाह रहे हैं आप ना, वो चीज करिएगा। हाँ, ठीक है। इस वक्त मेरा दिल दुखी है, मेरा अंदर से जो दिल है ना वो बहुत उदास है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की जहाँ आर्टिजनों की रोजगार है, यहाँ का टूरिज्म, उन्होंने हमारे टूरिज्म पर एक तरफ की छुरी मारी। हमारा बच्चा वो इसमें घुसना चाहे, वो बोल रहा है मेरे पापा को भी इज्जत नहीं है, मैं क्यों करूंगा? अभी जैसे घर का, जैसे आपने फट से ये थीम बताया ना, हमारा घर का ये है ना कि आर्टिस्टिक होने के कारण ना हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ आर्ट दिखेगा। जैसे अभी मैं बैठा हूँ तो हम मेरी पीछे वाली वॉल आप देख रहे हो मेरे एंट्रेंस की, तो उसमें भी आपको काम किया हुआ दिखेगा। हाँ, कि हमारे महिलाएं कावडंग से उसको फ्लोरिंग पेंट करते हैं। मेरी जो मम्मी है ना वो सुबह 6:30 से उसका शेड्यूल शुरू होता है, हम तो आराम से 8 बजे। মায়ের কাজ কি, আমার স্ত্রীর কাজ কি, আমার ছেলে মেয়ের কাজ কি, তার যেরকম কাজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, কিন্তু ফ্যামিলি একসাথে, তো সেই ব্যাপারটা যে আপনারা এক একজনের নিজেদের কাজ আছে, কিন্তু আপনারা একসাথে মিলেও কাজ করেন। হ্যাঁ, একসঙ্গে যে কাজ করি, যেমন মেলাঘাটে যে কাজ করি, তারপর প্যান্ডেলতে কাজ করি বা অন্য কোনো কাজের অর্ডার পেলে সেখানে যে কাজ করি। ব্যাপারটা হলো কি যে ঘর, এই যে বাড়ি, এই যে ফ্যামিলিটা মিলেই সেটা হয়, তাছাড়া ঘর তো খালি। কি মনে হয়? মনে তো অনেক কিছু হয়, এটা কতক্ষণের হবে? একটা কোনো গল্প না থাকলে ওর কিছু ভালো লাগবে? তো মা এসে কেমন আছেন? নমস্কার। এবার হয়তো গল্প করছি বা কেউ মাথায় হিড়াচ্ছে, কেউ আবার রান্না করছে উনানে,
এরা ওই খুন্তি খুন্তি দিয়ে করলে মানে একটা রান্নার দেখানো যায়, সবাই মিলে জোগাড় করে দিচ্ছি, রান্না করছি। আমি বলছি যে ওই যে কোনো দৃশ্য নিই, যেমন কাজে বসা, সেটাও যদি নিই, কিন্তু সেটার মধ্যে একটা কিছু একটা যদি আমরা টুইস্ট মানে যেমন আপনি কাজ করছেন, একটা রং শেষ হয়ে গেল, তারপরে কি করলেন? সেই রংটা শেষ হয়ে গেছে, তাহলে আমরা কি করবো, আবার যে জঙ্গলে গিয়ে, আমরা তো ন্যাচারাল কালারে কাজ করি, তাহলে ওই জঙ্গলে গিয়ে ওই গাছকে তুলে নিয়ে এসে ওই রংটাকে আবার তৈরি করে দেখানো যায়। আমার মনে অতটা যদি করি তাহলে এক কাজ করি না, ওই যে আমাদের রং তৈরি করার প্রসেসটা ওটাই করলেই তো হয়। বাহ, হ্যাঁ, যেমন ন্যাচারাল কালার যেটা তৈরি করি আমরা, যেমন কাঁচা হলুদের রস, সিম পাতার রস, কুই মিছরি, রঙেরটাও যদি করা যায়, যে আমরা হয়তো জঙ্গল থেকে রঙগুলো তুলে নিয়ে এলাম, তারপর কোনটা থেকে কি রং হচ্ছে, একদম পুরো রংটার কথা বলছে, যে এইটা থেকে এই রং, ওইটা থেকে ওই রং, ওইটা থেকে ওই রং, এই রংগুলো দিয়ে আমাদের ফটোচিত্র আঁকা হয়। এটা হচ্ছে সেগুন পাতা, সেগুন পাতা থেকে আমরা খয়েরি কালারটা পাই। এটা সারা বছর তৈরি করে রাখি এই মালার মধ্যে, তারপরে আমরা বেলের আঠা দিয়ে আমরা কাজ করি, পটের কাজ। तो ठीक है, मैं आर्ट वर्क की जो स्केच इस्तेमाल करूंगा, पहले मैं आपको राह दिखाऊंगा। कॉन्फ्रेंस के बगैर भी मैं व्हाट्सएप के जरिए आपको, अगर हम मिलजुल कर बैठेंगे, जब कोई ब्रश उठाएंगे तभी पता चल जाएगा कहाँ है। आर्ट को अंदर से बाहर निकालना है। तो ये वाले पेंटिंग बनाया मैंने, तो एक एलिफेंट के ऊपर बनाया है, तो एलिफेंट और हाथी दोनों, और एक इसी को मैं एक कोठी के रूप में बनाया है। तो उसमें सभी मैंने परिवार का नजर उसी में रहता है कि हमारे अनाज इसमें है। और इसको मैं आगे तक गया तो शंकर भगवान और पार्वती माता दोनों बेटों को क्या है कि जो पूरे पृथ्वी के राउंड लगा के जो पहले आएगा उसको हमने ये चीज प्रोत्साहन देंगे। तो उस समय गणेश जी अपने माँ बाप को चक्कर लगा के और वहीं के खड़े हो गए, तो उसको भगवान में पहले पात्रता दिया। कोठी को हमारे घर का पहले पात्रता होता है, क्योंकि हमारे सारी चीजें उसी में रहता है। अगर कोठी है तो उसमें एक ही आदमी रहेंगे घर के अंदर, तो शोभा नहीं देता, घर का सुंदरता सही नहीं रहता। लेकिन दोनों पति पत्नी घर पे हैं तो घर की सुंदरता और घर की सुरक्षित क्लियर है। तो हाथी के सामने में दो सिर इसलिए बनाया है कि एक पति पत्नी के दोनों का जुट बनाया है, कि मतलब इधर एक साइड उनका शरीर दिखाई दे रहा है, एक साइड उनका शरीर दिखाई दे रहा है, दोनों एक साइड उनका पूछ दिखाई दे रहा है, एक साइड उनका पूछ दिखाई दे रहा है। ये चीज क्लियर में, लेकिन बनाते बनाते मुझे दिमाग में इतना समझ में आया है कि हकीकत ये चीज होना चाहिए। अगर घर का परिवार है, हर लोग दुनिया के एक ही लोग के, ये एक परिवार है, निशानी कर रहे हैं किस तरीके से हम कलर में बसते, फूल के अंदर फूल, लोग के अंदर लोग। एक पेपर मैशी में डिजाइन में खुसूसियत है जो हजारा है। इसका मकसद है हर तबके के लोग, हर तबके के फूल, हर कलर के एक ही जगह बैठो। जो ये डिजाइन है उसी से भाईचारा निकलता है। अगर चमन को आबाद रखेंगे फिर तो आप खुशी से खिल जाएंगे। तो पहले तो हम ऐसे करते हैं कि एक घर का एक बैकग्राउंड, ऐसे एक घर है, झाड़ वगैरह, चित्रकला स्टाइल के झाड़ वगैरह ऐसी कुछ एक ड्रॉ करते हैं, और मॉर्निंग सीन दिखाते हैं जिसमें तुलसी रहेगा एक, फिर उसके सामने एक लेडी रहेगा, वो मे भी ऐसा कर सकते कि दैट विल बी माय मदर, और उसके पूजा कर रही है, उसके हाथ में थाली होगी, पूजा थाली। ओके, देखते हैं कैसे वर्कआउट होता है। তারপরে নতুন নতুন যা যা টেকনোলজি আছে সেটার মধ্যে কিভাবে পটচিত্র আসতে পারে সেটাই আমি টেস্ট করতে চাই। তাহলে আমি ভেবেছিলাম যে আমি আমার 7 জন আছি ফ্যামিলিতে, বা 9 জন আছি, 9 রকম ভাবে পটচিত্র করা যায়। গল্প যদি বলতে যাওয়া হয়, তোমাকে যদি চালনা করতে হয়, তার একটা আলাদা ভাবে মানে যেটা অতি সহজে তোমার কাজটা করা যায় আর কি, যে চলা যায়, কথা বলা যায়। তারপরে সেটাকে আমি একটা কি বলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা
এটা আছে যেটা নতুন টেকনোলজি বেরিয়েছে, আমি সেটার মধ্যে দিয়ে দেখতে চাই যেমন আপনি কথা বলছেন কিন্তু আপনার ওই পেন্টিংটা কথা বলছে। হ্যাঁ, আমি সেটাই বলতে চাইছি আর কি, যে চোখ লাড়ানো, চোখ এদিক ওদিক করা, পা চলানো, ওটা নিয়েই আমি কাজ করব ভাবছিলাম আর কি। আজি মনে মনে লাগে হরি, আজি বনে বনে লাগে হরি, আজি মনে মনে লাগে হরি। How do you navigate this particular thing? Complete ignorance towards the power of this technology and towards the possible misuse of this technology. This is the dark side of it, right? But there is a lot of positive and just amazing creativity that can come through because of this as well. If used in a particular way, treated like a bad relationship, the power dynamic here is not correct, and we need to change it. We need to understand, we need to negotiate, and we need to set some borders, we need to set some boundaries between us and technology. चाकू सब्जी काटने के लिए, किसी का गला काटने के लिए नहीं, इसीलिए सब कुछ दिमाग से काम करें। एक मिनट, सॉरी टू कीप एवरीवन वेटिंग। आज हम लोग अभी तक क्या काम हुआ है वो शेयर करेंगे, और अभी हम लोग क्या काम कर रहे हैं आपके आर्टवर्क के साथ वो बताएंगे, पर आप लोगों का काम खत्म नहीं हुआ है इसीलिए फोन है। तो अभी हम लोग इसको ट्रांस मीडिया प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। मतलब आपका जो आर्टवर्क है, एक एक आर्टवर्क को लेके लिस्ट बनाया है कि ये वाला जो स्टोरी है और ये वाला जो आर्टवर्क है, इससे इतना कुछ हम ट्राई कर सकते हैं नया चीज। সেমনি করে এই আইডিয়াটা এখন ये आइडिया प्रेजेंटेशन है, अभी बना नहीं है। हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन होगा जो हमको सपोर्ट करेगा ये बनाने के लिए। कोई ऑर्डर देता है तो हम लोग बनाते हैं आर्टवर्क, वो एक तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। और एक तरह हो सकता है आप लोगों के साथ जो मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ, ये है आपके आर्टवर्क्स के साथ क्या क्या ऐसा प्रपोजल हम बना सकते हैं, और हर एक प्रपोजल में मैं भी रहूंगी, आप भी रहोगे। ये है हमारा एम। ये वाला करेंगे, वो डिटेलिंग होगा थोड़ा सा। मैं इनको ना लेके स्टिकर बनाऊंगी, व्हाट्सएप का स्टिकर जैसा होता है ना, हिंदी में या मराठी में, मैं समझ में आई। हाँ, ये भी हम लोग पहली बार कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग डेली ऐसा काम करते हैं। हम भी सीख रहे हैं, हम भी सीखते सीखते इसको बना रहे हैं। मकबूल जान जी, आपने ये अलग अलग फूल मुझको बना के भेजा है। हमारा जो मार्केट का जो चेंज है, क्लाइमेट का जो चेंज है, आपका ये आर्टवर्क ये दोनों चीज के बारे में बात करता है एक साथ। किस तरह से आर्टिजन का लाइफ चेंज हो रहा है, पर किस तरह से दुनिया का पूरा जो क्लाइमेट का जो चेंज हो रहा है, उसके ऊपर से ये अलग अलग मजहब, अलग अलग जगह, अलग अलग चीज के बारे में भी हर एक आर्टवर्क कितना कुछ बोलता है। आपका आर्टवर्क का फोकस हम वो लेके चल रहे हैं। तो ये जो पूरा पटचित्र है, आप देख रहे हो कि कितना बड़ा है, आपको ये ऊपर से लेके नीचे तक है। प्राकृतिक रंगের জন্য চিত্রকার জঙ্গলেতে যায়, সারা বছরের জন্য রং সংগ্রহ করে, তাই প্রাকৃতিক রঙের জন্য চিত্রকর। রঙের যে গান, এই প্রথম আমিও জানতাম না যে এই রঙের বিষয় নিয়ে গান করা যায়। দিদি, এটা অনেক ধন্যবাদ, মানে এটা আমাদের সব পটুয়ার তরফ থেকে ধন্যবাদ। সবার চেয়ে যেটা মানে খুবই আমি এক্সাইটেড, আমাদের কাজটা যেটা, আমার যে অ্যানিমেশনের যে কাজটা আছে, সেটাতেও কিন্তু নতুন রকমের জান ঢুকছে আপনার সাথে কাজ করে। মানে এটা কিন্তু একটা নতুন জিনিস তৈরি হয়েছে আমাদের তরফ থেকে। রঙের জন্য চিত্রকর। वाह ये जो गाना अभी उन्होंने गाया, वो अगर कोई बच्चा अगर सीखेगा तो उनको पूरा पता लग जाएगा कि किस तरह से कौन से फूल से क्या मिलता है।
নিজেদের এখনো পটচিত্র কোনো বানানো হয়নি, মানে গ্রামের মধ্যে যেভাবে আমরা থাকি বাবা ওইভাবে আঁকাটাকেও তুলে ধরেছে, যে হাঁস মুরগি ছাগল সব কিছু আর পুরো বাড়ি টাড়ি প্রত্যেকটা জিনিস এমন ভাবে দেখিয়েছে, আমাদেরকে খুব ভালোও লেগেছে আঁকতে। তার মানে পুরো পরিবার নিয়ে জোরে যে থাকি, এটা একটা একদম নতুন কাহিনী। আর কাজটা কিন্তু এটা আমাদের সাথে রেগুলার চলে যাচ্ছে, আমরা ওটাকে আর মাথায় ভাবি না যে এটার একটা পড হওয়া দরকার। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है उसी चीज के बारे में है कि हमारा जो डेली लाइफ है, जो हम लोग सोचते हैं कि कुछ भी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उन चीजों के साथ, क्योंकि वही हमारा जिंदगी जीने का जो स्टाइल है वहीं से आता है। तो वही सब छोटे छोटे चीज मिलके ही बनते हैं कि किस तरह से वो जान ला सके आपके आर्ट वर्क में। বাহাদুর জি, কথা কি আমার বুঝতে পেরেছেন? एकदम बुझते पेरेছি। ठीक है, ग्रेट। क्यों अगर हम लोग बंगाली में बात कर रहे हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा है, प्लीज पूछेगा, ठीक है? और ये हर एक आपका जो कैरेक्टर है उसका अभी स्टडी चल रहा है, ये कैरेक्टर स्टडी, कि अगर ये कैरेक्टर को हम निकाल के अलग अलग फ्रेम में देखेंगे तो कैसे लगेगा। उसके साथ क्योंकि आपका स्टोरी है रोंगेर गान, मतलब द सॉन्ग ऑफ कलर, और लूडो में क्या होता है, लूडो में कलर होता है और लूडो में घूम के हमको घर आना पड़ता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, सबका आर्टवर्क के साथ हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये है, और एक इसका जो टेस्ट किया है जी जी पेंसिल टेस्ट किया है जी, किस तरह से ये मूवमेंट हो सकता है। शायद जैसे आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग शेयर करते जाएंगे किस तरह से ये बढ़ रहा है, आपका भी फीडबैक इसमें देंगे किस तरह से इसको बेटर कर सकते हैं। जी 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 जी। ये प्रोजेक्ट एक साथ सीखने का मतलब एम है कि मकसद है कि हम लोग एक साथ ग्रो करें और जिसका जो काम है उसका हक रहे उस पे, क्योंकि वो हम लोग एग्जीबिशन में जाते हैं, प्रेजेंटेशन में जाते हैं, उस टाइम वो बात करने का जगह ही नहीं रहता। कर्मा गाएला होई आबे हमार टोला, कर्मा गावा हूँ बहनी तोला। आप बहन मैं भाई अगर मेरे पास आएंगे तो मैं गाना गवाऊं, आपको मैं पेंटिंग दिखाऊं, आप बहनी तोला। ये हमारे शब्द है। वाह ये जो हमारा कम्युनिटी है, हमने जो ये अभी नया कम्युनिटी बनाया है जिसका नाम हम लोग कारीघर रख रहे हैं, हमारा घर। We are at the school, literally at the school of these art traditions of these communities, as well as that you are offering something for them to learn, but that has to be on an equal footing. So you are creating that kind of a dialogue, and dialogue also means it's not the ideas intellectual exchange, but it means you're sharing our life experience, exchange between worldviews, exchange between the knowledge systems. You are hopefully this will be a space for that kind of dialogue, and it's a platform for this pluralistic, plural voices. Intercultural dialogue, intercultural relations, international, those are heavily political issues, not party politics. I'm not talking about that. In a larger sense of it, there's political issues, there's economic issues, and that could be a platform to voice all these multiple facets of this the dialogue platform. So on one hand, it's a space for deeper dialogue. On the other hand, platform for voices to be heard and exchanged. So that is will be already an enormous task.